এসেছে শরৎ, বাঙালির মনে দুর্গাপুজোর অবকাশ। এই সময়টায় প্রত্যেক বছরই কেন জানি না মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। বড় হবার পর বুঝতে পারলাম আমরা তো এপারে গঙ্গা পাড়ে দুর্গাপুজোয় আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকি, কিন্তু ওপারে পদ্মা পাড়ে, মেঘনা পাড়ে যারা আজ বাংলাদেশি নামে পরিচিত, সেই বাঙালি হিন্দুদের কি অবস্থা কেউ কোনো দিন ভেবে দেখেছি? বিগত 2 সপ্তাহ ধরে যে নারকীয় ঘটনা সেখানে ঘটে চলেছে মনে পড়িয়ে দেয় সেই আলাউদ্দিন খলজি, এক জেহাদি মুসলমান, এসে বাংলার বুকে জ্বালিয়েছিল নালন্দা বিহার, ধ্বংস করেছিল তার লাইব্রেরি। কথিত আছে প্রায় 9 লক্ষ পুঁথি পত্র পুস্তক প্রায় 90 দিন ধরে জ্বলেছিল, 3 মাস ধরে জ্বলেছিল বাংলার বুকে। আর সেই আগুনেই সেখানকার মৃগ পশুগুলিকে বধ করে আগুনে ঝলসে খেয়েছিল এই বর্বর সৈন্যদল। অতীতের সে ক্ষতের পথ অতিক্রম করে আধুনিক ভারতে শিক্ষিত সমাজ আমরা এগিয়ে চলেছি পুনরায় বিশ্বকে জ্ঞানের পথ দেখাতে, যার সূচনা উত্তর তথা উত্তর পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ সাহিত্য একাডেমির মাধ্যমে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মরণ সভায় এসেছিলাম। পরিচয় হলো বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রিয় লেখক আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই বিখ্যাত লেখক যিনি লিখেছিলেন এক শিশুর ভাষায়, নিষ্পাপ শিশুর জবানিতে, রাজা তোর কাপড় কোথায়। কবিতার নাম উলঙ্গ রাজা। শৈশবে আমরা সবাই পড়েছিলাম এবং মনে জাগ্রত হয়েছে সেই আদর্শ, যাতে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারি, রাজা তোর কাপড় কোথায়। যে কোনো মহিষীর ভাস্কর্য ভঙ্গই অপমানজনক, অপরাধমূলক। মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভঙ্গ করা হয়েছে, এটা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু বলে যে সমস্ত বাঙালি, ভারতীয় হিন্দু বাঙালি ব্যাপারটা এড়িয়ে চলেছেন, তাদের কাছে আমার ছোট্ট প্রশ্ন, সেখানে তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে, তাতে আপনাদের প্রতিবাদ নেই কেন? তখন আপনারা চুপ কেন? সে দৃশ্য কেন আপনারা দেখতে পান না? সে ঘটনা কেন আপনারা শুনতে পান না? তখন প্রতিবাদ করতে কেন আপনাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়? আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। এটাও যেরম সত্য, রাজা তোর কাপড় কোথায়, এটাও চরম সত্য। 7 কোটি সন্তানের হেমুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি, এটা চরম সত্য। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे संग है क्षेत्रवासी नायक। सर जी से बहुत कुछ बातचीत हम लोग करेंगे और बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं क्षेत्रवासी नायक हूँ। मैं साहित्य एकेडमी कोलकाता रीजनल ऑफिस का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। धन्यवाद सर। बाकी के बात हम लोग आमने सामने करते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, शुभेच्छा। और केंद्र साहित्य एकेडमी की जो कलकत्ता रीजनल ऑफिस है, ये 60s के दौरान एस्टेब्लिश किया गया था और इतने दिनों से ये चल रहा है। और भारत की जो पूर्वांचल की जो भाषाओं है उनके ऊपर ही काम करता है, जैसे कि मेनली बंगाली,
उसके साथ फिर उड़िया, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, संताली, ये मेजर 6 लैंग्वेज को देखभाल करते हैं हम। कुछ सेमिनार करते हैं, सिम्पोशियम करते हैं, युवा राइटर्स को लेकर कुछ प्रोग्राम का आयोजन करते हैं रेगुलर, और किताबें छापते हैं इन सब लैंग्वेज में। इसके सिवा और 2 लैंग्वेज है, नेपाली और मैथिली, वो भी हमारे ईस्टर्न रीजन बोर्ड में आता है, उसका भी कुछ काम हम यहाँ करते हैं। और वहाँ एक अच्छा सा लाइब्रेरी भी है, बहुत पुराने अच्छे किताब है, और लाइब्रेरी ओपन है सबके लिए। संडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इन दिनों में आकर हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों देख सकते हैं। और जो हम किताब छापते हैं, जैसे कि भारत का 24 भाषाओं को जो संवैधानिक स्वीकृति मिला है, सभी भाषाओं का किताब हमारे रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, और हमारा जो 6-8 लैंग्वेज है वो हमारे लैंग्वेज का किताब फिर कैसे दूसरे लैंग्वेज में जाएगा, वही हमारा मूल कर्तव्य है। उसके साथ कोई दिग्गज लेखक का जन्म शतवार्षिक होता है, किसी का सिम्पोसिया होता है, बड़े लेखक को बुलाते हैं। इसके साथ युवा लेखकों को भी प्रमोट करते हैं और नए लेखक को भी प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारा एक नवोदय स्कीम है, जिस स्कीम में हम किसी राइटर का अगर पहला मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित कभी भी नहीं हुआ है, उसका किताब नहीं है और बिलो 40 इयर्स का है, तो उसका प्रकाश करने का जिम्मेदारी हम लेते हैं, नवोदय स्कीम बोलते हैं। और युवा लेखकों के लिए तो आजकल और भी बहुत सारे कुछ योजना तैयार कर रहे हैं हमारे अकादमी के उच्च कर्तृपक्ष। और महिलाओं के लिए भी, जैसे अस्मिता, नारी चेतना, ये सब महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए ही। तो सारे वर्ग के राइटर्स को लेकर ये लेखक के भवन है, साहित्य अकादमी कोलकाता। धन्यवाद सर आपके सहयोगिता के लिए। आपका बात सुनने का बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो कृपया बताइए। ये संस्कृत और जितने सारे लैंग्वेजेस आपने बताया, भारतीय लैंग्वेज, इसके बीच में एक कनेक्टिंग लैंग्वेज था, रिलेटेड लैंग्वेज था, जो ट्रांसफॉर्म होकर ये सारे लैंग्वेज बने हैं, ऐसे मैं इतिहास में पढ़ा था। वो लैंग्वेज का नाम था पाली। इसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी मिल सकता है क्या? ये पाली भाषा क्या है, आपके नॉलेज में क्या है, कृपया जरा बताइए ना प्लीज। ये एक्चुअली मेरा जितना सामर्थ्य है ज्ञान का, इसके थोड़ा सा बाहर है, और इसके लिए भाषाविद को ऊपर हमको पूछना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ किताब है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करके या किसी से पूछताछ करके। एक्चुअली आपने जो पूछा है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत प्राचीन भाषा है। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाषाविदों के अंदर कुछ ओपिनियन का डिफरेंस भी होता है, तो सही क्या है वही बात अगर हम दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा होगा। तो मुझे कृपया माफ कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर मेरे पास नहीं सर, माफी का कोई बात ही नहीं होता, बस मेरे मन में एक प्रश्न आया, मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये प्राचीन भाषा है, बहुत सारे लुप्त हो गया है, कल्चर भी, भाषा भी, और भी दूसरे बहुत सारे चीजें। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेडिशन चल रहा है भारत में कि पुरानों को खोज के निकाला जाए, ताकि हम अपना संस्कृति जो है उसको बढ़िया तरीके से खुद भी जान पाए और विश्व के सामने प्रचार कर पाए। इस रिगार्डिंग मैं अपना ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ जानकारी अगर मिले तो इसीलिए पूछा था। इसमें सर माफी का सवाल है ही। बहुत आपको